class. Very good morning, students. Welcome to the lecture on solar cells. So, I will be delivering a lecture on the solar cell, and this will be a brief description of its principle and construction. So, one by one, we will go through the principle and construction as well as various limitations, advantages, demerits, and what are the future scopes of solar cell. We will look towards each and every point in a brief in this lecture. So, first of all, let us have a look what are the contents of this lecture. So, if we look towards the content of the this lecture, the content goes like this. So, the contents are it will include the this lecture will include the introduction of the solar cell, principle of solar cell, construction of solar cell, working of solar cell, types of solar cell, generation of solar cell, advantages and disadvantages of solar cell, and application of solar energy. Right. So we will study the entire solar cell in this lecture one by one. So we'll start with the introduction part. The first module in this is introduction. In this content is introduction. So first of all, let us have a look what it is, what the solar cell is, what the word solar cell actually means, and from where it has been derived. Right. So, if we talk about the solar cell in a layman language, then we can say that solar cell is the photovoltaic device that convert the light energy which come from sun into electrical energy. Okay. So, the very first thing we have to define is what kind of device it is. जब हम कभी भी इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं या किसी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह का डिवाइस है, राइट? जैसे कि हम जब पढ़ रहे थे टाइडल पावर एनर्जी, तो वो मैंने बोला इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी, क्योंकि किसी ना किसी का फॉर्म होता है ये, राइट? और हमें एनर्जी का एक फंडा पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे यूटिलाइज की जाती है, राइट? इट इज वेरी क्लियर। इन द सेम वे, सोलर सेल इज द फोटोवोल्टेक डिवाइस दैट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी आता कहाँ से? विच कम्स फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? So this device work on the principle of photovoltaic effect. पहले तो पता चल गया ये कौन सा डिवाइस है, फोटोवोल्टेक डिवाइस है। काम क्या करता है? लाइट एनर्जी को, और लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसका सोर्स क्या है? सन से, और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ये प्रिंसिपल क्या है इस डिवाइस का? ये डिवाइस जो है वो फोटोवोल्टेक इफेक्ट पे वर्क करता है। अब जब मैंने बोल दिया फोटोवोल्टेक इफेक्ट, तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में ये आएगा कि व्हाट इज फोटोवोल्टेक डिवाइस, व्हाट इज एक्चुअली फोटोवोल्टेक इफेक्ट, राइट? सो let us have a look at the photovoltaic effect. So photovoltaic device का मतलब है the generation of voltage across the PN junction in a semiconductor due to the absorption of light radiation is called photovoltaic effect. The device based on this effect is called photovoltaic device. तो photovoltaic effect क्या है? हमें voltage का generation कहाँ से मिल रहा है? The generation of the voltage across the PN junction, right? The generation of voltage across the PN junction in a semiconductor due to the absorption of light radiation is called photovoltaic effect. So the generation of the voltage, मतलब अगर एक P डायोड और N डायोड और PN जंक्शन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज create hoga, and this voltage is due to the absorption of the light radiation, and that is known as photovoltaic device. So the generation or the introduction of voltage across the PN junction in a semiconductor, because a semiconductor consists of two diodes, P types and N type, and
एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो उस पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर लाइट रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से वोल्टेज जनरेट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। इट मींस इसमें सारा रोल किसका है? लाइट एनर्जी का है। ठीक है, लाइट एनर्जी आपका एब्जॉर्ब किया पीएन जंक्शन ने, और उसके वजह से वोल्टेज उसमें क्या हुआ? जनरेट हुआ। एंड द डिवाइसेस बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। और जो भी डिवाइस इस इफेक्ट पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी को हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्लियर हो गई कि डिवाइस ये कौन सा है? ये फोटोवोल्टेइक डिवाइस है, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, पीएन जंक्शन डायोड पे ये एब्जॉर्ब करेगा, और सोलर एनर्जी का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। आई मीन जो एनर्जी आपको सन से मिल रही है, उसका सबसे बड़ा रोल होगा, और फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की वजह से हमको जो है लाइट एनर्जी को एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगा। यही है आपका सोलर सेल का डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जैसा कि मैंने बताया कि द सोलर सेल और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। द फोटोवोल्टेइक इफेक्ट इज द photo generation of charge carriers in a light absorbing materials as a result of absorption of light radiation. It means it will revolve around the absorption of light radiation. So if there will be no absorption of light radiation, there can't be any creation of the voltage, right? And if there is the absorption of light radiation, this is coming from the material, then the voltage is created, and that voltage is known as that voltage is useful for the electricity generation, and these all principle is known as photovoltaic effect. अब हम देखते हैं सिंगल सोलर सेल। ठीक है, देखो यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर है, उसके जंक्शन पे जो है वोल्टेज जो है वो क्रिएट हो रहा है, राइट? तो दिस इज एन टाइप, एंड this semiconductor consisting of n type diode and p type diode. So दिस इज अ सोलर सेल। ये एक सिंगल सोलर सेल है जिसमें आपका एन टाइप और पी टाइप का जंक्शन है, और ये एन टाइप और पी टाइप के जंक्शन में जब सोलर रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा इसके अक्रॉस, कमिंग फ्रॉम द सन सोर्स, तो उसकी वजह से जो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, देन क्या होगा? वोल्टेज का जनरेशन होगा, उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, जो यूजफुल फॉर्म होगी। तो ये कौन सा है? ये है आपका सिंगल सोलर सेल। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल के बारे में। ठीक है, तो सोलर सेल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जान लो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल में, सोलर सेल जो है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, कंसिस्ट ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, या उसको एमिटर कहो लेयर, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, उसको कहो बेस। तो यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप दोनों अवेलेबल है। एन टाइप है एमीटर और पी टाइप है आपका बेस। द टू लेयर्स आर सैंडविच्ड एंड हेंस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। इन दोनों लेयर को हमने क्या किया? सैंडविच कर दिया, और ये पीएन जंक्शन एक डायोड बना दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप आपका एमीटर है और पी टाइप आपका जो क्या है वो बेस है, और इसको सैंडविच करने के बाद जो है इसमें कौन सा फॉर्मेशन हुआ? पीएन जंक्शन का। ठीक है, the surface is coated with anti-reflection coating to avoid the loss of incident light energy due to reflection. Okay, so the surface is coated with anti-reflection coating. अब इस surface को एक anti-reflection coating हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा प्रिंसिपल किस पे रिवॉल्व कर रहा है? हमारा फोटोवोल्टेइक इफेक्ट इसी पे रिवॉल्व कर रहा है कि जो भी आपका सरफेस है वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, राइट? वो क्या कह रहा है? लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब कोई भी लाइट रेज है किसी सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, या तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हमको स्कैटरिंग को रोकना है, आई मीन वो बैक टू द एटमॉस्फेयर जाए, उसे रोकना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोई एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग
उस पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड दैट विल अवॉइड द लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, a proper metal contacts are made on the n type and p type side of the semiconductor for the electrical connection। ठीक है, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं थोड़ा सा वर्किंग। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सोलर सेल। ठीक है, वर्क कैसे करता है। अब मैंने मैंने आपको दो तीन चीज क्लियर कर दी है, उसी उसी पे ये फंडामेंटल, वही इसके फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे ये लाई करेगा। ठीक है, और फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया आपको। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए, उसके जंक्शन पर ही वो जो रेडिएशन है उसकी वजह से होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं, उसी तरह होगा, सिमिलर ही है। when a solar panel exposed to sunlight, जब एक सोलर पैनल जो है सनलाइट को एक्सपोज होता है, the light energies are absorbed by semiconductor material। वेरी गुड। अब भैया हमने पहले ही बता दिया आपको कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें एन टाइप है और पी टाइप है। एन टाइप आपका एमिटर है और पी टाइप आपका बेस है, उन दोनों को सैंडविच कर दिया, पहली चीज। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपोज कर दिया किसके सामने, सोलर एनर्जी के पास सामने, सोलर एनर्जी के सामने इसको, आई मीन सन के सामने मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। अब वहां से जो है क्या हो रही है, लाइट एनर्जी जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है, और जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम इस पे क्या प्रोवाइड किए हैं, इस पे हमने प्रोवाइड किया है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। ठीक है, तो अब एब्जॉर्ब हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू दिस एब्जॉर्ब एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड एंड प्रोड्यूस द एक्सटर्नल डीसी करंट। देख लो, एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मैंने प्रोवाइड किया है, एक ट्रांसपेरेंट एडेसिव है और एक कवर ग्लास है। ठीक है, ये आपका सनलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, सनलाइट उस पर पड़ रहा है और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की वजह से वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड और लिबरेटेड एंड प्रोड्यूस द एक्सटर्नल डीसी करंट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से डीसी करंट जो है आपका वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ द डीसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू 240 वोल्ट एसी करंट यूजिंग एन इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अब जो ये हमारा करंट है वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो हम अल्टरनेटिंग करंट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। तो एक इन्वर्टर का हमको यूज करना पड़ेगा, राइट। आप जैसे सोलर एनर्जी से डायरेक्टली जो एनर्जी आप ले रहे हो वो कौन सा करंट क्रिएट कर रहा है, वो डीसी करंट क्रिएट कर रहा है। और वो डीसी करंट कितने वोल्ट का है, 240 वोल्ट। अब इस 240 वोल्ट को एसी करंट में कन्वर्ट करना है तो हमको इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू 240 वोल्ट एसी करंट यूजिंग एन इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल। मैंने आपको बताया था ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उसकी बेसिस पे हमारा जो डिफरेंट टाइप्स होगा वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसमें कौन से तीन तरह के होंगे बेसिकली, कौन कौन से, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, एमॉर्फस सिलिकॉन सेल्स। ठीक है, अब देखो क्या है ये मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल या अमरफस सिलिकॉन सेल। ठीक है, आपका पता है कि जो सोलर सेल है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने इसको तीन फॉर्म में डिवाइड कर दिया, दैट इज मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, अमरफस सिलिकॉन सेल। अब मोनोक्रिस्टलाइन का मतलब हुआ, मोनो से मतलब हुआ सिंगल, तो द मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, मतलब सिंगल क्रिस्टल। Since the monocrystalline silicon is pure and defect free, the efficiency of cell will be higher। ठीक है, अब जब आपका जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो सिंगल क्रिस्टल है और वो प्योर सिलिकॉन है, तो प्योर सिलिकॉन हुआ तो मतलब क्या होगा, डिफेक्ट फ्री होगा। तो जिसमें डिफेक्ट नहीं होगा, जिसका जो प्योर होगा, जो आपका कंपाउंड है, उससे क्या होगा, एफिशिएंसी नो डाउट हायर हो जाएगी। सो द मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, दैट इज सिंगल क्रिस्टल। Since the monocrystalline silicon is pure and defect-free, the efficiency of the cell is very high, right? Polycrystalline. पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल
लिक्विड सिलिकॉन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जो लिक्विड सिलिकॉन है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वाज ऑब्टेन फॉलोड बाय सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। और ये कैसे मिला हमें? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से मिला। ठीक है, the materials contain the various crystalline sizes, hence the efficiency of this type of cell is less than the monocrystalline cell। देखो, पहला था monocrystalline single crystal pure silicon defect free, so efficiency is very high, very good। polycrystalline liquid silicon रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, मिल कहां से रहा है? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से। सो साइजेस आर ऑफ वेरियस ranges, so it means the efficiency will be altered and this efficiency will be less than the monocrystalline cell। और तीसरा क्या है? amorphous silicon। So amorphous silicon was obtained by depositing silicon film on the substrate like glass plate। Okay, so amorphous silicon was obtained by depositing the silicon film on the substrate like glass plate। तो हम क्या करते हैं? एमरफस सिलिकॉन हमें कैसे मिलता है? हम सिलिकॉन फिल्म को सबस्ट्रेट लाइक ग्लास प्लेट पे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, द लेयर थिकनेस अमाउंट्स टू लेस देन 1 माइक्रोमीटर। द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर फॉर अ कंपैरिजन इज 50 टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसकी लेयर की थिकनेस कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। और ये बोला गया जो ह्यूमन हेयर का जो थिकनेस है वो है 50 टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, the efficiency of amorphous cell is much lower than that of other two cell, no doubt ये काफी lower होगा। as a result they are used mainly in low power equipment। जब efficiency कम होगी तो low power equipment में no doubt उसको use किया जाएगा, जैसे watches है, pocket calculators है, या facet elements है, facet elements है। ठीक है, तो आपका तीन तरह का है, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और amorphous silicon। और अगर हम बात करें इसके कि इसकी इफिशियंसी कितनी है, तो मोनोक्रिस्टलाइन की सबसे ज्यादा है और एमएफएस सिलिकॉन की सबसे कम है और पॉलीक्रिस्टलाइन की एवरेज है। और इसमें बात करें प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो वो मोनोक्रिस्टलाइन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सिंगल क्रिस्टल से बना है और डिफेक्ट फ्री है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक, और उसमें आपका एमरफस सिलिकॉन में जो है वो सिलिकॉन फिल्म को हम डिपॉजिट करते हैं एक ग्लास प्लेट पे, वहां से हमको मिलता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ सोलर सेल। ठीक है, अब कंपैरिजन जब हम देखेंगे तो उसमें तीन तरह के हमारे पास हैं, मोनोक्रिस्टलाइन है, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन है और एमरफस सिलिकॉन है। मोनोक्रिस्टलाइन में इफिशियंसी 14 टू 17% होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन में 13 टू 15% होती है और एमरफस में 5 टू 7 होती है। अभी मैंने बताया ना सबसे ज्यादा मोनोक्रिस्टलाइन में है, डिफेक्ट फ्री है ये। ठीक है, ये आपका प्योर सिलिकॉन है। ठीक है, और तो इसमें क्या है, कितना है? 14 टू 17%, पॉलीक्रिस्टलाइन 13 टू 15%, एमरफस सिलिकॉन 5 टू 7%। अब हम बात करेंगे जनरेशन, कितने इसके जनरेशन रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो जब हम जनरेशन ऑफ सोलर सेल के बारे में बात करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन का मतलब हुआ सिलिकॉन जंक्शन सिलिकॉन सॉरी सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ सोलर सेल्स का, वो स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनरेशन से। और फर्स्ट जनरेशन का मतलब हुआ सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल। ठीक है, तो सिंगल जंक्शन में अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें थी। इफिशियंसी लिमिट थी कितनी? 31%। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन 16 टू 19% एफिशिएंसी, मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन 14 to 15% efficiency, and best efficiency by sun power is 22%। ठीक है, तो ये आपका जो सिंगल सेल एवरेज एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो है आपकी 16 to 19%। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन की बात करें तो 40 टू 15%, और बेस्ट एफिशिएंसी जो है वो सन पावर के द्वारा 22%। ठीक, 87.4% of 2007 production, 45.2% of single crystal silicon and 42.2% of multi crystal silicon। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन का मतलब हुआ थिन फिल्म सेल्स। ठीक है, पहला क्या था? फर्स्ट जनरेशन का मतलब हुआ
सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल, ठीक है, जिसमें हमने देखा एफिशिएंसी इज 31%, सिंगल क्रिस्टल के लिए 16 to 19%, मल्टी क्रिस्टल के लिए 14 to 15% और सन पावर से 22%, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन, थिन फिल्म्स, new materials and processes to improve the efficiency and reduce cost. ठीक, thin film cells use about 1% of the expensive semiconductors compared to first generation cell. Single crystal silicon 4.7% and multi crystal silicon 0.5% of 2007 production. Single crystal silicon has 8 to 11% efficiency and multi crystal silicon has 7 to 11% efficiency. देखो इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो सेकेंड जनरेशन है, आई मीन थिन फिल्म सेल्स, ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन है आपका थिन फिल्म सेल्स, इसमें एक दो चीजें हैं, जैसे कि आपका जो न्यू मटेरियल एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, तो इसमें नए मटेरियल का यूज किया गया और प्रोसेसिंग का यूज किया गया इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। Thin film cells use about 1% of the expensive semiconductor. इसमें 1% एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज किया गया कंपेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन सेल। मतलब फर्स्ट जनरेशन सेल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें 1% एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज किया गया। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जो है वो 4.7% है और मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन 0.5% ऑफ द 2007 प्रोडक्शन 2007 में जो प्रोडक्शन हुआ उसमें 4.7 जो है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन प्रोड्यूस हुआ और मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन जो है वो 0.5% ही है टोटल का, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन हैज, उसका जो इफिशियंसी आया वो 8 to 11% है और मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन का है वो जो है 7 to 11%। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन, मल्टी जंक्शन सेल्स, ठीक है। अब मल्टी जंक्शन सेल्स में क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस का यूज करते हैं। तो जब हम बहुत सारे जंक्शंस का यूज करेंगे तो इट इनहेंस द पुअर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस व्हाइल मेंटेनिंग वेरी लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। देखो पहला था फर्स्ट जनरेशन, देन आया सेकेंड जनरेशन, अब जो है थर्ड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन इज बेसिकली मल्टी जंक्शन सेल्स, ठीक है। इट इनहेंस द पुअर इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस व्हाइल मेंटेनिंग वेरी लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। ये आपके जो इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस बहुत जो पुअर हो गई थी उसको जो है इनहेंस करता है बाय मेंटेनिंग दी लो प्रोडक्शन कॉस्ट। Current research is targeting conversion efficiencies of 30 to 60% while retaining low cost material and manufacturing techniques. Multi-junction cell is 30% efficiency, 40 to 43% जो है आपका वो demonstrated है, ठीक है। तो ये है आपका different different generation, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। स्टार्ट किससे किया, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सिंगल जंक्शन विद सिलिकॉन सेल, ठीक है। जनरेशन ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल किसका बनता है, सिलिकॉन मटेरियल का। तो सब और उसमें जंक्शन कौन सा होता है, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पहला जनरेशन मतलब सिंगल जंक्शन विद सिलिकॉन सेल, एफिशिएंसी 31%, single crystal silicon 16 to 19%, multi crystal silicon 14 to 15%, of best efficiency by sun power 22%। 2007 में प्रोडक्शन 87.4%, जिसमें से 45.2% सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन और 42.2% मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन, ठीक है। फिर आए सेकेंड जनरेशन, मतलब थिन फिल्म, फिल्म थोड़ी थिन हो गई, उसमें न्यू मटेरियल and processes to improve the efficiency and reduce the cost. Thin film cells use about 1% of the expensive semiconductor. क्या यूज किया गया, 1% of the expensive semiconductor compared to the first generation cell, right? Single crystal silicon 4.7% and multi crystal silicon 0.5% of 2007 production। तो पॉइंट आपका 4.7% उसका प्रोडक्शन है, 0.5% आपका सिलिकॉन क्रिस्टल का है। अब सिंगल क्रिस्टल का इफिशियंसी 8 to 11% आया और मल्टी क्रिस्टल सिलिकॉन का आपका जो है एफिशिएंसी वो 7 to 11% आया, ठीक है। अब आया थर्ड जनरेशन, ठीक है। पहले में सिंगल हुआ, ठीक है,
फिर आया आपका सेकेंड जनरेशन, थिन फिल्म्स का यूज किया गया। फिर आया थर्ड जनरेशन, इसमें आपका मल्टी जंक्शन सेल, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इनहेंस किया गया, आपकी पुअर जो इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस थी उसको इनहेंस किया गया और लो प्रोडक्शन कॉस्ट को मेंटेन किया गया, ठीक है। करंट रिसर्च इज टारगेटिंग कन्वर्जन एफिशिएंसीज ऑफ 30 to 60%, ठीक है। अभी जो करंट रिसर्च हो रहा है इसको टारगेट है एफिशिएंसी को 30 to 60% while retaining low cost materials and manufacturing techniques, ठीक है। और मल्टी जंक्शन सेल्स जो है वो 30% इफिशियंसी है, जिसमें से आपका 40 to 43% जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है अभी तक, ठीक। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ये तो हमें समझ में आ गया कि सोलर सेल है क्या, सॉरी, एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल है क्या उसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा। देन वर्किंग प्रिंसिपल, दैट इज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे बात करता है वो। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है वो भी देख लिया। देन हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। देन हमने उसकी वर्किंग देख ली, ओके। देन हमने उसका डिफरेंट जनरेशन देख लिया। अब हम थोड़ा एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला, जब भी बात होती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, तो हम ब्लाइंडली बोलते हैं कि इट इज क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग। तो इस केस में भी पहला केस यही है कि ये क्लीन है और नॉन पोल्यूटिंग है। फिर नॉन कन्वेंशनल है, मतलब रिन्यूएबल होगा, सो इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। Solar cells do not produce noise and they are totally silent. So solar cells do not produce any noise and they are totally silent. They require very little maintenance. Maintenance बहुत कम require होता है. They have long life. ठीक है. And there are no fuel cost और fuel supply problem. ठीक है. तो इसके जो ये points हैं ये बहुत important है. Clean है, non polluting है, renewable है, नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन साइलेंट है, मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर करता है, लॉन्ग लाइफ है, नो फ्यूल कॉस्ट और फ्यूल सप्लाई प्रॉब्लम, ओके। तो अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो सोलर सेल और सोलर पैनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सोलर पैनल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एनर्जी हैज नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरीज, एनर्जी जो है वो बैटरी में स्टोर नहीं होती है। एयर पोल्यूशन एंड वेदर कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी को जो है वेदर जो है वो अफेक्ट कर सकता है। दे नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट पावर सप्लाई, ठीक है। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमको एरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक। तो it requires a large area for the efficient power supply. Sun does not shine consistently, ठीक है। आपका जो सन एनर्जी है इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है, और सन जो है वो हमेशा आपका साइन नहीं करता है, डे टाइम में साइन करता है बट नाइट टाइम में साइन नहीं करता है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेस एफिशिएंट एंड कॉस्टली इक्विपमेंट, थोड़ा इफिशिएंसी इसकी कम होती है और जो इसका इक्विपमेंट है वो बहुत कॉस्टली है। रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, और इसके सारी रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लोकेशन पे। आई मीन वो जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है कि नहीं, जहाँ सूरज तपता है कि नहीं, क्योंकि सन की लाइट एनर्जी को ही इसे कन्वर्ट करना है। तो जो सूरज की रेडिएशन है जब वो आपके पैनल पे पड़ेगी तभी वो उसे कन्वर्ट कर पाएगा। आई मीन उस पे उसके ऊपर सोलर एनर्जी का सूर्य की किरणों का पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है उसके लोकेशन पे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। डोमेस्टिक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन स्पेस। डोमेस्टिक पावर सप्लाई के लिए हम यूज कर सकते हैं घरों में, अगर हम सोलर सेल का यूज करें, घर की छत पे अगर हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर लें और उसको हम लाइट एनर्जी को फिर यूजफुल फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। सोलर पंप्स भी यूज किए जाते हैं फॉर वाटर सप्लाई। वाटर हीटिंग, सोलर वाटर हीटर्स भी अवेलेबल है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है। एंड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल पावर टू सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स को भी आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट दी सोलर सेल। हमने सोलर सेल के बारे में थोड़ा सा देखा, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। सोलर सेल से हमको पता चला कि ये एक फोटोवोल्टेइक डिवाइस है
फोटोवोल्टेइक इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी आपका पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर है, तो उस पे अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो उसे एब्जॉर्ब करके वो उसको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी को हम फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। और जो इस इफेक्ट पे जिस डिवाइस का बेस होता है उसको हम फोटोवोल्टेइक डिवाइस कहते हैं। देन आपका फोटोवोल्टेइक में सोलर सेल डिफरेंट सिंगल सोलर सेल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल में हमको दो चीज का ध्यान रखना है कि ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का बना होता है, जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो एमिटर कहते हो, और पी टाइप है जो हम बेस कहते हैं। तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का यूज करते हैं सो दैट लॉस ना हो इंसिडेंट लाइट का। फिर एक प्रॉपर मेटल कॉन्टेक्ट्स आर मेड ऑन द एन टाइप एंड पी टाइप साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। फिर हम वर्किंग की बात करते हैं, तो वर्किंग में आपका जो है वो लाइट रेज जो है उस पर इंसिडेंट होनी चाहिए, और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और एब्जॉर्ब होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, फिर डीसी करंट का प्रोडक्शन होता है, और उस डीसी करंट को हम जो है इन्वर्टर का यूज करके 240 वोल्ट एसी करंट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। सोलर सेल तीन तरह के हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमरफस। मोनोक्रिस्टलाइन में सिंगल क्रिस्टल प्योर सिलिकॉन, तो प्योर सिलिकॉन मतलब नो डिफेक्ट, मतलब नो डिफेक्ट का मतलब इफिशिएंसी हायर है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल मतलब लिक्विड सिलिकॉन, और इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वाज ऑब्टेन्ड फॉलोड बाय सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। सो द मटेरियल्स कंटेन वेरियस क्रिस्टलाइन साइजेस। इसमें डिफरेंट साइज होता है, तो जब साइज होगा तो उसका जो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मटेरियल है तो ये डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। फिर है हमारे पास सिलिकॉन, और ये जो है डिपॉजिट करके पाया गया था बाय डिपॉजिटिंग सिलिकॉन फिल्म ऑन द सबस्ट्रेट लाइक ग्लास प्लेट। ठीक है। देन आपका बात किया हमने कंपैरिजन, तो इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई है मोनोक्रिस्टलाइन की जो 14 to 17% है, पॉलीक्रिस्टलाइन 13 to 15% और हमारे पास 5.7। Then we talked about generation. First generation single junction, then second generation thin film cells, and then third generation is multi junction cells. Right. So advantages देख लिया, renewable है, clean है। Disadvantages भी हैं कि expensive है और एनर्जी बैटरी में स्टोर नहीं होती है, एयर पोल्यूशन, वेदर इफेक्ट ज़्यादा होता है, और लार्ज एरिया हमको जो है रिक्वायर्ड होता है, और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। So this is all about your application: domestic power supply, electric power generation in space, drying agriculture product, solar pumps for water supply, water heating, generating electrical power, and to provide the electrical power to satellites. So this is all about solar cell, its principle, working and construction, with its advantages and disadvantages, as well as the application. So this lecture is all about solar cells. If you have any queries, you can ask uh, your queries. Thank you so much. Have a good day.